Hello my dear viewers, I welcome you all to Soumya's Academy, the finest way to correct our English. So today in this lecture, we are going to start the very interesting topic, that is parts of a sentence. Okay, before we go through the lecture, I would like to tell you something, that most of us like to speak in English, but we hesitate to speak English because we think that there may be some errors while speaking. Okay, so in order to rectify these errors we should learn English grammar. Okay, अगर हम लोग ग्रामर को सीख लेंगे then it will be very easy for us to learn the spoken English and we can speak English in a better way. Okay, so let us begin with the new topic, that is the parts of a sentence. New means it is the first topic, that is the parts of a sentence. So as we know that what a sentence is, sentence कहने से हम लोग क्या समझते हैं? Sentence is nothing, simply it is a group of words having a complete meaning. है कि नहीं? अगर एक group of words रहेंगे and they have a complete meaning, उन लोग का एक complete meaning रहेगा, then we call it as a sentence. तो जो sentence हम जानते हैं, the sentence has two parts. Basically, a sentence has two parts. Two parts of a sentence. Okay, the first one is subject and the second one is the predicate. These are the two parts of a sentence. Again, the first one is the subject and the second one is the predicate. So what is the subject? What do you mean by subject? Who does the action? Okay, who or what does the action? जो कुछ काम करता है, जो कुछ कार्य करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं. And what is the predicate? The part of the sentence, the part of the sentence which gives idea about the subject. Okay, this is subject. Okay, what do you mean by subject? Subject कहने से आप लोग क्या समझते हैं? Subject is simply who does the action. जो कुछ कार्य को करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? Subject कहते हैं. And what is predicate? The part of the sentence which gives idea about the subject. Okay, उसको हम लोग क्या कहते हैं? Predicate कहते हैं. Generally what happens? अगर हम एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज द प्रेडिकेट. ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. Ramesh likes sweets. Okay, here I have written the sentence, that is Ramesh likes sweets. रमेश को स्वीट्स पसंद है. ठीक है, अगर यहाँ पे रमेश को स्वीट्स पसंद है, so who does the action? What is the action here? Likes, पसंद करना. यहाँ पे एक्शन क्या है? Likes, that is पसंद करना, जो कि वर्ब है यहाँ पे. ठीक है, कौन पसंद करता है? रमेश पसंद करता है. So here रमेश does the action. So रमेश is the subject. ठीक है, तो मैं आपको बोला कि सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद तो बाकी जितना पोर्शन बच जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं. सो लाइक्स स्वीट्स, दिस कंप्लीट फ्रेज, दिस इज द प्रेडिकेट. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. ठीक है, तो जो कुछ करता है, ठीक है, उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, और जो वर्ड्स सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? रमेश. तो रमेश के बारे में हम लोगों को क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि रमेश को मिठाई पसंद है. ठीक है, तो ये जो मिठाई पसंद है, ये इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिला? फ्रॉम दिस. सो दिस इज द प्रेडिकेट. आई होप ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है आपको समझ में आया ही होगा.
ठीक है। Now let us learn how to identify a subject in a sentence. एक सेंटेंस के अंदर हम लोग कैसे एक सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम लोग एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद the remaining part of the sentence will be the predicate. Okay, so अगर हम एक सेंटेंस लेंगे तो किस टाइप का सेंटेंस लेंगे? That sentence may be an assertive sentence, that sentence may be an interrogative sentence, है कि नहीं? तो इस तरह अगर हम देखेंगे कि एक सेंटेंस के अंदर मतलब टाइप सेंटेंस टाइप क्या होता है हमको ये पता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, है कि नहीं? फर्स्ट वन इज द assertive, सेकंड वन इज द assertive सेंटेंस को और भी कहा जाता है दैट इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्या होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन इज द imperative sentence and the fourth one is the exclamatory sentence. These are the 4 types of sentences and in each type of sentence we will take some examples and we will find out the subject in the sentence. Okay, ये 4 प्रकार का सेंटेंस लेंगे एक एक करके। हर एक टाइप का सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट भी फाइंड आउट करना है और प्रेडिकेट भी फाइंड आउट करना है, ठीक है? सो लेट अस बिगिन। Identifying subject in assertive sentence। तो ये जो assertive sentence है, इस assertive sentence में हम लोग सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने से पहले हमको ये तो पहले जानना पड़ेगा कि ये assertive sentence होता है क्या है, राइट? तो assertive sentence is the sentence which gives some statements, okay, which gives simple statements। जो कुछ स्टेटमेंट देते हैं उन लोगों को हम क्या कहते हैं? assertive sentence कहते हैं, ठीक है? जैसे कि रमेश meets me डेली। रमेश मुझे रोज मिलता है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या है कि रमेश, तो एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है ना, कि एक ओपिनियन दिया जा रहा है कि रमेश मुझे डेली मिलता है, ठीक है? तो एक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस आई कैन टेक plants are beautiful। My father's friend gave me a watch। So these are the 3 sentences I have taken, and in these 3 sentences my work is to find out the subject and the predicate. Okay, so let us identify the subject. The first one is the Ramesh meets me daily। Ramesh meets me daily। So here in order to identify the subject there is a trick. We will make a question using who or what। We will make a question using who or what, then whatever result we will get, that result will be the subject। whatever the answer we will get, that answer will be the subject। Look at the sentence carefully। Ramesh meets me daily। If I will make a sentence that who meets me daily, who meets me daily, then the answer will be Ramesh। So that's why the Ramesh is doing the action here, that means Ramesh is active in the sentence। Okay, that's why Ramesh will be the
subject. Here the subject is Ramesh. Ramesh is the subject. So the rest part of the sentence, that is meets me daily, the whole phrase, this is the predicate. Okay, सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स रहते हैं उन सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं, आपका प्रेडिकेट में ही आते हैं. ठीक है, तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, we will make questions using who or what, then whatever the answer will come, that is the subject. Okay, but this rule does not work in case of exclamatory sentence. There is some special case in exclamatory sentence, we will learn later. Okay, next sentence, sentence number 2. Plants are beautiful. Plants are beautiful. I will make a question, who are beautiful, the answer will be plants. So plants is the subject. Okay, and the rest are predicate. Are beautiful, this is the predicate. Okay, next, look at this sentence is very important. My father's friend gave me a watch. Okay, my father's friend gave me a watch. So what is the question? So what will be the subject? Use the same formula. Who gave me the watch? Who gave me a watch? What will be the answer? My father's friend. Yes or no? So ये आप लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि who gave me a watch, friend gave me a watch, right? Friend gave me a watch. So यहाँ पे आपका friend क्या हो जाएगा, subject हो जाएगा, but individually this friend can't be the subject in this case. Individually यहाँ पे जो friend लिखा हुआ है ये आपका subject अकेला नहीं हो पाएगा. Then what will be the subject? My father's friend. This total phrase will be the subject. यहाँ पे आपका total phrase लिखा हुआ है my father's friend, ये total आपका क्या हो जाएगा, subject. क्यों हो रहा है? Because आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा, anything that is pronoun, participles, gerund which is included in a subject, they all will come under subject. ठीक है, they cannot be excluded from it. उसको हम subject से अलग नहीं कर पाएंगे. जैसे कि यहाँ पे friend gave me a watch. Okay, if I will make question who gave me the watch, the answer will be friend. That's fine. Okay, वो हो जाएगा, friend आपका subject बन जाएगा. ये अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि my father's friend, then the total phrase my father's friend टोटल हो जाएगा आपका सब्जेक्ट में. ठीक है ना, क्योंकि फ्रेंड को कौन, फ्रेंड के बारे में कौन और कौन ज्यादा आइडिया दे रहे हैं, कौन उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई उसको कर रहे हैं माय फादर्स. ठीक है, क्योंकि ये फ्रेंड किसका है, मेरे पापा का दोस्त है, माय पापा के फ्रेंड है. ठीक है, दैट्स व्हाई टोटल आपका किसके अंदर आएगा, सब्जेक्ट में आएगा. ठीक है, तो ये अगर माय फादर्स फ्रेंड अगर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, गिव मी अ वॉच ये क्या हो जाएगा आपका predicate. ठीक है, so now let us see how to identify subject in an interrogative sentence. Interrogative sentence के पास जाने से पहले यहाँ पे assertive sentence का और दो एग्जांपल हम देख लेते हैं. ठीक है, so like look at the sentence, the voice of नेहा कक्कर makes me crazy. मुझे नेहा कक्कर का voice क्या कर देता है, crazy बना देता है, पागल कर देता है. ठीक है, so यहाँ पे what will be the subject? क्वेश्चन करेंगे, what makes me crazy, what makes me crazy. देखिए, इसको क्वेश्चन बनाने का भी तरीका है. ठीक है, क्योंकि हम लोग इस सेंटेंस में आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें वर्ब क्या है, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, मैक्स है. राइट डाउन द वर्ब. वर्ब से पहले क्या डालोगे, who और what. यहाँ पे what लगेगा, what makes me crazy. The answer will be the voice of Neha Kakkar. Okay, the answer will be the voice of Neha Kakkar. So the voice of Neha Kakkar, it will be subject, and the rest part, that is makes me crazy, it will be the predicate.
है कि नहीं? In the second sentence, the man with orange cap is KL Rahul. The man with orange cap is KL Rahul. जो टोपी पहने ऑरेंज कैप जो पहने हैं वो KL राहुल है। तो उसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सब्जेक्ट को क्वेश्चन बनाएंगे। क्या यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए? हु और व्हाट। कैसे क्वेश्चन बनेगा? मैं आपको बताया हूं कि पहले आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे वर्ब कौन सा है, इज, यहाँ पे वर्ब है, राइट डाउन इज हियर। इज से पहले क्या यूज करेंगे? हु और व्हाट। हु यूज करो यहाँ पे, हु इज KL Rahul, KL Rahul. What will be the answer? The man with orange cap, है कि नहीं? The man with orange cap is KL Rahul. So जो आपको आंसर मिलेगा वो हो जाएगा आपके लिए क्या? Subject. So the man with orange cap, this is the subject, and is KL Rahul, है कि नहीं? Is KL Rahul, this is the predicate. I hope कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। Look at the sentences given here. I have taken 3 examples. The first one is, are they playing in the ground? The first sentence is, are they playing in the ground? All these 3 sentences are interrogative sentences. Okay. So first sentence को ध्यान दीजिए यहाँ पे, are they playing in the ground? The first sentence is, are they playing in the ground? That means सवाल ये पूछा गया है कि क्या वो लोग ग्राउंड में खेल रहे हैं। सेकंड सेंटेंस इज, यू आर गोइंग टू स्कूल, आप लोग स्कूल जा रहे हो। व्हेयर डिड रागिनी विजिट यस्टरडे, कल रागिनी कहां घूमने गई थी। These are the 3 sentences and we have to identify the verb, sorry, subject. Okay, so how to identify the subject? We can identify the subject by using the question who or what. So who are playing in the ground? If I will make the question who are playing in the ground, the answer will be they are playing in the ground. So they is the subject. Okay, and are playing in the ground, this is the predicate. So are playing in the ground, they all are predicates, but they are separated by the subject. ठीक है, subject हो गया आपका they, and are playing in the ground are the is the predicate, but the predicate are playing in the ground is separated by the subject they. Okay, ऐसा नहीं है कि subject sentence में हमेशा beginning में ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, subject कहीं पे भी आ सकता है according to the requirement or structure of the sentence. वाक्य के गठन के हिसाब से सब्जेक्ट कहीं पे भी आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप लोग स्कूल जा रहे हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाऊंगा हु आर गोइंग टू स्कूल, आप लोगों को बोला था हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, यूज हु और व्हाट एंड मेक द क्वेश्चन। ठीक है, कैसे बनाओगे क्वेश्चन? हु आर गोइंग टू स्कूल, द आंसर विल बी यू। सो यू इज द सब्जेक्ट। अगर यू यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया तो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज आर गोइंग टू स्कूल इज द प्रेडिकेट। ओके, इन द थर्ड सेंटेंस व्हेयर डिड रागिनी विजिट यस्टरडे, रागिनी कल कहां घूमने गई थी। हु विजिटेड यस्टरडे, हु विजिटेड यस्टरडे, तो आंसर इज रागिनी विजिटेड यस्टरडे। सो यहाँ पे रागिनी विल बी द सब्जेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन इंपेरेटिव सेंटेंस। एक इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस एंड फाइंड आउट इट्स सब्जेक्ट। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। कि इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस द सेंटेंस व्हिच इंडिकेट्स सम ऑर्डर्स, request, okay, order, request, instruction, advice, okay, this type of sentences are called imperative sentence, है कि नहीं? I hope कि आप लोगों को ये आपको पता ही होगा कि imperative sentence क्या होता है। So उसका एग्जांपल लेते हैं। Please, the first example is please pass the
salt. Okay, please pass the salt. Second one, stand up. Sorry, stand up. Third one, march on. Okay, obey the rules. Obey the rules. These are the 4 sentences that I have taken here. These are the 4 sentences. The first one is please pass the salt. Second one is stand up. Third one is march on, and the fourth one is obey the rules. These are the 4 sentences. So if we will implement the same rule to identify the subject, that is we will make a question using who or what, then we will get the subject. बट यहाँ पे क्वेश्चन बनाइए, देखिए प्लीज पास द सॉल्ट. मैं क्वेश्चन बनाऊंगा हु पास द सॉल्ट. आंसर आप कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा. स्टैंड अप, हु स्टैंड अप. आंसर आप कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा. सिमिलरली इन ईच एंड एवरी इंपेरेटिव सेंटेंस यू कैन फाइंड द सब्जेक्ट डायरेक्टली. है कि नहीं? डायरेक्टली आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा. इसीलिए in case of imperative sentence the subject is always you. In case of imperative sentence लिख देता हूं यहाँ पे, in imperative sentence you is the subject. है कि नहीं? imperative sentence में हमेशा आपका सब्जेक्ट क्या होता है? you रहता है, which is hidden, जो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है. hidden फॉर्म में चल रहा है. it is omitted, है कि नहीं? वो आपको दिखेगा नहीं. समझ में आया कि नहीं? तो कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस रहे उसका सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? you होगा. ठीक है? so let us now identify the subject in an exclamatory sentence. Look at the sentences. These are the examples of 3 exclamatory sentences, and we have to identify the subject and predicate. Okay, the first one is the what a beautiful flower it is. The second one is how beautiful is the rain, and the third one is how foolish you are. These are the 3 sentences. पहले हम लोग सेकंड सेंटेंस को सॉल्व करते हैं. ठीक है, सेकंड सेंटेंस का आंसर निकालते हैं. ठीक है, कि उसका सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन. तो इसमें अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट, तो वही सेम ट्रिक यूज करेंगे कि हु इज द ब्यूटीफुल और व्हाट इज द ब्यूटीफुल. का आंसर विल बी द रेन. रेन अकेला नहीं होगा, उसके साथ जो डिटरमिनर लगा है द, दैट विल बी आल्सो इंक्लूडेड एज द सब्जेक्ट. ठीक है, उसको भी हम ऐड करेंगे. हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन. व्हाट इज ब्यूटीफुल. द क्वेश्चन विल बी व्हाट इज ब्यूटीफुल. द आंसर विल बी द रेन. सो द रेन इज द subject here. Rain is the subject, and how beautiful is ये जो हो गया, this is the predicate. Okay, so in the second sentence, second means the first one, what a beautiful flower it is. है कि नहीं? यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन करेंगे, क्या क्वेश्चन बनाएंगे? What is beautiful flower. The answer will be it. Yes or no? The question यहाँ पे ये बनेगा what is beautiful flower. है कि नहीं? और who is a beautiful flower. Who is a beautiful flower. The answer will be it. So it will be subject. अगर आप लोग यहाँ पे it को सब्जेक्ट के हिसाब से लिख देते हैं, then ये आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा. ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पे आपका वही ट्रिक को यूज करके अगर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करोगे, then it will be 100% wrong. ओके, तो क्यों रॉन्ग हो रहा है? बिकॉज ग्रामर के रूल हिसाब से अगर यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कहीं पे ईट और देयर रहता है, ईट और देयर उसको अच्छे से लिख देते हैं. क्या क्या है वो? ईट और देयर. ये दो वर्ड अगर रहते हैं आपका सेंटेंस में, तो ये कभी आपका सब्जेक्ट नहीं बन पाएंगे. ठीक है,
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये जो दोनों वर्ड अगर ईट और देयर मिलेंगे तो ये कभी आपका सब्जेक्ट नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट होगा क्या, ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब इसको छोड़ने के बाद रेस्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस दे आर द पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट, वो आपका प्रेडिकेट में ही आएंगे, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ फुलिश यू आर। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, हु और व्हाट। तो यहाँ पे हु लगेगा, हु इज फुलिश, है कि नहीं, हु इज फुलिश, द आंसर विल बी यू, है कि नहीं। सो यहाँ पे यू हो जाएगा आपका सब्जेक्ट एंड हाउ फुलिश आर ये आपका रह जाएगा क्या, प्रेडिकेट में ये आएंगे दोनों, हाउ फुलिश आर, ठीक है। और मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, क्योंकि क्या बोला आप लोगों को, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट द सब्जेक्ट विल ऑलवेज कम एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। एक सेंटेंस में बिगिनिंग में हमेशा सब्जेक्ट आएगा, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, ठीक है। द सब्जेक्ट कम्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसका गठन के हिसाब से आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। द सेंटेंस मींस इन केस ऑफ योर assertive sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence and imperative sentence. And in the next lecture we will do some more exercise and we will also learn the position of the subject in a sentence. एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का पोजीशन कहां-कहां पे रहता है, किस जगह पे रहता है, क्योंकि ये तो हमेशा बिगिनिंग में तो रहेगा नहीं, तो फिर कहां पे रहेगा। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग एग्जांपल लेंगे और सब्जेक्ट के पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और आप लोग मेरे चैनल में न्यू है, देन आई होप दैट आई विल लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।